Assalamualaikum. It's me, Hafsa Wahid. Welcome to another video from Physics 5054 series. In the previous video, we have seen past paper questions from electricity and magnetism. In this video, inshallah, we'll discuss some past paper questions from nuclear physics. So I hope it would help you clear any misconceptions you have had so far. So let's get started. First of all, they say that stars are formed inside a cloud of gas and dust in space. When a star forms, the cloud first becomes smaller as it collapses. Eventually, nuclear fusion occurs in the star. So, define nuclear fusion. We have studied two main processes. First one was nuclear fusion, and then the second one was nuclear fission. And we had already discussed that fusion is the process in which two lighter nuclei fuse together to form a heavier nuclei with the release of energy or maybe number of neutrons. Whereas fission, on the other hand, is the process in which a heavier nuclei splits into lighter nuclei again with the release of energy and emission of two or maybe three neutrons, right? Depending on किस nuclei की आप fission की बात कर रहे हैं. Clear? So they've asked you to define fusion. You will just quote the first definition here. Then state one condition that is required for nuclear fusion to occur in the stars. We have discussed कि fission और fusion uncontrolled तो दोनों reactions होते हैं. जो हमारे पास fusion है uncontrolled तो वो sun पर हो जाता है, right? लेकिन अभी तक we are unable to set up an experiment या the conditions जिसमें हम controlled fusion reaction करवा सकें. Reason क्या था? कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन के लिए या फ्यूजन को इनिशिएट करवाने के लिए वी नीड extremely high temperature, right? We need extremely high pressure as well. दोनों में से आप जो चाहें यहाँ पर कोट कर लें. So one of the condition to initiate fusion reaction is extremely high temperature. So you can write one here for 1 mark. Then when a large star explodes, nuclei of heavy elements are formed. One such nucleus is uranium. This right here is the atomic number or number of protons, right? In the nucleus or maybe the number of electrons orbiting the nucleus. And this right here is the number of nucleon, which we also know as mass number, that is the sum of protons and neutrons in the nucleus, right? So state the name and the number of each type of particle found in one nucleus of uranium 92 235. So let's just first write about this one. This right here is proton. Numbers found are 92. And then if you write nucleon, you'd write 235, right? But nucleon itself is not a particle, right? Nucleus के अंदर वाले particles को हम generalize करके collectively nucleon का नाम देते हैं. So it is better to write neutron here. And since neutron plus proton is 235 and we know इनमें से 92 are proton, तो यकीनन बाकी जो 143 हैं they must be neutron. Of course, you can change the order, neutron पहले लिख लें, proton बाद में लिख लें, but just make sure कि you stick to the correct number. State one feature that is the same for the nuclei of all isotopes of uranium. Uranium की बात होती या किसी भी element की बात होती. Isotopes we have discussed are the nuclei of the same element having same number of protons or maybe same atomic number but different number of neutrons, or we can say different mass number or maybe different nucleon number, right? So you'll write that the nuclei of uranium, all of them will have same proton number irrespective of their nucleon number, right? And then हम तो already पढ़ चुके हैं कि atom को identify किया जाता है उसके proton number से. So as long as proton number remains 92, we'll say कि हम uranium के atom की बात करें. भले फिर जो nucleon number है वो 235 है, 234 है, 238 है, whatever it be, right? Then, a nucleus of uranium 92 to 35 in a nuclear reactor can undergo nuclear fission. Describe the process of nuclear fission in a nuclear reactor. Of course, they've asked you to describe it for 2 marks, right? So you do not need to get into
एक्सेसिव डिटेल ऑफ द प्रोसेस, लेकिन जाहिर है फॉर द रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता था। हमने कहा था न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन करवाते हैं, राइट। फिजन में क्या होता था, हमारे पास यूरेनियम है, इस पर हम स्ट्राइक करवाते थे एक न्यूट्रॉन को, राइट। रिजल्ट में दिस यूरेनियम वुड स्प्लिट इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, बेरियम और क्रिप्टोन, barium and krypton, right, with the emission of 2 or 3 neutrons. In this case इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूल सी के 3 न्यूट्रॉन्स को एमिट होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी यूरेनियम के बजाय किसी और से फिजन रिएक्शन करवाएं तो इट माइट बी पॉसिबल कि रिजल्ट में 3 के बजाय कोई 2 न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे। इसीलिए यू वुड हैव नोटिस्ड कि जब मैंने ऊपर भी फिजन को मेंशन किया तो आई डिड नॉट से विद द इमिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स और विद द इमिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, आई सेड विद द इमिशन ऑफ मे बी 2 or 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये हमारे पास बेसिक फिजन का रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या करते थे, हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराते थे यूरेनियम के एटम पर। रिजल्ट में ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाता था एंड ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है अब ये स्प्लिट होता था 2 लाइटर न्यूक्लियाई में विद द इमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स एंड ऑफ कोर्स द इमिशन ऑफ एनर्जी एज वेल, राइट। एंड देन आगे आप चाहें तो मेंशन कर दें कि द रिएक्शन इज सेल्फ प्रोपेलिंग, खुद ही जो है वो प्रोसीड होता जाता है चेन रिएक्शन। एंड देन एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में दिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड, यानी ये जो इमिट होने वाले 3 न्यूट्रॉन्स हैं ऑल ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू अंडरगो फिजन विद अनदर अवेलेबल यूरेनियम न्यूक्लियस। जाहिर है इसमें से तकरीबन कोई 2 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे कंट्रोल रॉड पर एंड कोई एक जो है वो इस चेन रिएक्शन को कैरी करेगा। क्लियर, तो आप 3 लाइनों में जितना लिख सकते हैं लिख दें। लेट्स स्टार्ट विद in fission slow moving neutron is absorbed by the uranium atom. As a result, uranium splits into 2 lighter nuclei with the emission of 3 neutrons, 2 और 3 लिख दें, राइट, बिकॉज यहाँ पे दे डिड नॉट मेंशन कि यूरेनियम इन्हीं 2 में स्प्लिट हो रहा है या किसी और 2 एलिमेंट्स में स्प्लिट हो रहा है। बिकॉज अगर तो इन्हीं 2 में स्प्लिट होता है तो इट इज ऑब्वियस 3 ही न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे, लेकिन अगर ये किसी और 2 न्यूक्लाई में स्प्लिट हो रहा है तो इट माइट बी पॉसिबल कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 न्यूट्रॉन्स की गुंजाइश बचे, राइट। So you'll write it splits into 2 lighter nuclei with the emission of neutron, and the reaction is controlled with the help of control rod, whereas hard water is used to slow down the fast moving neutrons, right. I think it is enough for these 3 lines and for these 2 marks. Do not go into construction of a nuclear reactor कि आप उसमें बताने बैठ जाएं कि उसमें जो है हम हार्ड वाटर को क्यों किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, फिर आगे जाके वो स्टीम बन जाता है एंड देन टर्बाइन से कनेक्टेड है फिर वो वापस आ रहा है कोर के अंदर एंड ऑल दीज थिंग्स, उस तक ना जाए। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, एक डिफरेंस इसकी बेसिक डेफिनेशन ही है, राइट। फ्यूजन में एक हेवियर पार्टिकल स्प्लिट होता है लाइटर में, एक फ्यूजन में लाइटर पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म हेवियर, राइट, एंड फिजन में एक हेवियर पार्टिकल स्प्लिट हो जाता है टू फॉर्म लाइटर न्यूक्लियर। उसके अलावा फिजन में ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं हमें एज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। फ्यूजन में अगेन वी माइट गेट न्यूट्रॉन, लेकिन उनका नंबर वुड ऑलवेज बी लेस देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो फिजन रिएक्शन से हमारे पास आते हैं। इसी तरह फ्यूजन और फिजन दोनों रिएक्शन से रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है वो रेडियो एक्टिव है, हमारे पास कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बनेगा। फ्यूजन के केस में वो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो कंपेरेटिवली कम होता है, फिजन के केस में ज्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलता है। दिस इज द रीजन कि फिजन का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो ज्यादा डेंजरस, राइट। एंड आप टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हैं, फ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है एंड फिजन के लिए कंपेरेटिवली लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। लेकिन आई ऑफ कोर्स नॉट सजेस्ट यू राइटिंग टेम्परेचर वाला डिफरेंस बिकॉज आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर इस चीज को मेंशन कर दिया फिजन की कंडीशन में। द न्यूक्लियस ऑफ, अच्छा I'd like to mention एक करेक्शन जो यहाँ पे I've noticed in the responses I've received so far. See, इन्होंने मेंशन कर दिया है ना यूरेनियम 92 to 235, so you need to make sure that this reflects in your answer here as well. You should not be writing कि इस process में a heavier nucleus breaks into lighter nucleus. Why? They've already mentioned कि heavier nucleus कौन सा है, so you need to make sure that you write that uranium 92 to 235 splits into 2 lighter nuclei with the emission of neutrons, right?
So do not just keep on writing heavier nucleus, heavier nucleus. You need to write uranium. Nucleus of uranium-92-235 is not stable, that is, it is radioactive. It decays by the emission of an alpha particle into a nucleus of thorium. Complete the nuclear equation that represents this decay. We've already seen nuclear, जब भी कोई रेडियो मटेरियल है और वो डिके होता है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, सो वी सीन वो अल्फा इमिट कर सकता है, वो बीटा, गामा, न्यूट्रॉन, ऐसी रेडिएशंस जो है, ये पार्टिकल जो है वो इमिट कर सकता है. आप उसके लिए न्यूक्लियर इक्वेशंस भी लिखते हैं, बट दीज न्यूक्लियर इक्वेशंस मस्ट बी कंजर्व्ड इन चार्जेस एंड masses, right? यानी उसका चार्ज नंबर भी दोनों साइड्स का बराबर होना चाहिए, लाइक ऑन ईदर साइड ऑफ द एरो, एंड उसका जो मास नंबर है वो भी इक्वल होना चाहिए. बाय द वे, चार्ज नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? ये जिसको एटॉमिक नंबर भी हम कहते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से आता है, अंदर मौजूद न्यूट्रॉन तो वैसे भी न्यूट्रल एंड ऑल दीज थिंग्स. खैर, गेटिंग बैक टू द मेन टॉपिक, आपको इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है. इन्होंने कहा यूरेनियम ने अल्फा पार्टिकल इमिट किया, सो अल्फा पार्टिकल की तो कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है ना, इट इज हीलियम न्यूक्लियर, दैट इज इट हैज 2 प्रोटॉन्स and 2 neutrons as well. This makes up 4 nucleons, right? So its mass number is 4. Now that we know कि alpha की composition ये है, और मुझे दूसरी साइड पे यूरेनियम के बारे में भी पता है, एंड मुझे ये पता है कि इक्वेशन चार्ज कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन को वायलेट नहीं कर सकती, तो जो भी यहाँ पर बाकी रह गया वो यहाँ पर आना चाहिए. इफ इट इज 92, 90 plus 2. If it is 235, so 231 plus 4, right? So this right here is the balanced equation for this reaction. Then Giger and Marsden carried out an experiment to investigate the scattering of alpha particle. Figure shows a diagram of apparatus that they used. We have a radioactive source right here that is emitting beam of alpha particle, and this then strikes the thin gold foil, and then we have a vacuum in this chamber right here, um, to avoid the alpha particles interacting with the atmosphere के molecules. Then we have a fluorescent screen here जो glow करेगी जब उस पर कोई radiation जो है वो incident होगी, and that's it. When an alpha particle strikes the fluorescent screen, a flash of light is emitted. On figure, mark with the letter P where most flashes occur on the screen. Experiment में हमारे पास final outcome क्या था? Alpha particle scattering experiment के कुछ outcomes याद करें. उसमें हम कहते थे कि atom mostly is empty. और हम ये क्यों कहते थे? Because experiment में हमने observe किया था कि most of the alpha particles passed through this thin foil without being deviated from their path, right? Without deviating from their path. So वो unscattered पास हो गए थे इस फिल्म से. So this makes us conclude कि जो अगर बीम यहाँ से इंसिडेंट हुआ था, the most number of alpha particles will reach the screen right here, right? उसी पाथ को एक्सटेंड करते हुए, डेविएट नहीं होंगे अपने पाथ से, राइट? और हमें तो पता है ना, जब पार्टिकल स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ये ग्लो करेगी. सो हम लिखने में ऐसे लिखेंगे कि मोस्ट नंबर ऑफ फ्लैशेस विल बी सीन एट दिस पॉइंट लेबल्ड एज पॉइंट पी. उसके अलावा आपसे कह रहे हैं अच्छा फिर स्क्रीन के बाकी पार्ट्स पर क्या होगा? बाकी पार्ट्स पर भी सी हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम जो है वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे, लेकिन देयर वर अ फ्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अपने पाथ से कुछ ना कुछ डेविएट हुए, राइट? लेकिन गए वो गोल्ड फॉइल के सोर्स से ऑपोजिट वाली साइड पर, राइट? एंड देन क्योंकि उनका नंबर बहुत कम था, तो दिस मेड अस कंक्लूड कि जो है यकीनन इन्होंने न्यूक्लियस से एनकाउंटर किया होगा ना. सो दिस मेड अस कंक्लूड कि न्यूक्लियस जो है वो बड़ा टाइनी सा रीजन है एटम के सेंटर में, राइट? सो वी शुड बी राइटिंग कि ऑन आइदर साइड ऑफ दिस पॉइंट पी fewer number of flashes will be observed, right? यानी lesser number of alpha particles will move towards um, these sides of this point P, right? So what is seen on the other parts of the screen, that is what you'd write here. Then they are asking you to write 2 conclusions about atoms of gold that resulted from this experiment. Now most of the responses I've checked so far, they are mentioning कि जो atom है वो उसके center में
हमारे पास जो है एक डेंस रीजन है, एंड देन उसके बाद वो सराउंडिंग की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, लाइक दे आर राइटिंग कि जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एक स्पेसिफिक स्पिन है, एंड सो ऑन। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, ये जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इट वाज फॉर द investigation of nucleus, so you should stick to the nucleus. Like of course you can write that atom is mostly empty. Then you can write that nucleus is a positive or positively charged dense region at the center of atom, and then you can add that most of the mass of atom is concentrated in the nucleus, right? Your nucleus is very tiny. ऐसे एक आध पॉइंट न्यूक्लियस के बारे में मेंशन करें, राइट? सो टू कंक्लूजंस विल be enough to write here. Then we have another question. Table shows the composition of four neutral atoms and one atom that has been ionized. Ionization is when an atom or a molecule loses or gains electron. Like if it loses electron, it will be positively charged. That is anion with positive charge, right? And if it gains an electron, it would be anion that has negative charge, right? So आपसे कह रहे हैं five particles are labeled here. We have P, Q, R, S, and T, and they've mentioned their composition here. That is, they've given their number of protons, number of neutrons, and the number of protons. आपसे कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है it is -1.6 exponent -19 coulombs. State which of P, Q, R, S, and T is ionized atom. हम एक सेंटेंस बड़ा रिपीटेटिव जो है वो मेंशन करते हैं, ये कि अगर आप किसी न्यूट्रल एटम की बात करें तो इसके न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, सो विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द एटम, राइट? लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक एटम आयनाइज हो गया है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, दे माइट डिफर, बल्कि दे मस्ट डिफर, राइट? सो कौन सा न्यूक्लियस इधर ऐसा है जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैच नहीं करते? सी वी हैव 17 एंड 17, दैट्स नॉट आयनाइज्ड. 19 एंड 18, दिस राइट हियर इज एन एटम दैट इज आयनाइज्ड. और अगर वो आपसे यहीं पर एक और एडिशनल पॉइंट भी पूछ लेते कि बताएं कि इस एटम ने, जिस पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया या लूज किया, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते थे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, because it has 19 protons in the nucleus. So it, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स ही होते ऑर्बिट में, बट राइट नाउ it has 18 electrons, that is it has lost one of its electrons. So बाकी चेक कर लें अपनी तसल्ली के लिए, but the answer is right here. Q is the atom जो आयनाइज हो गया. Then state the size and the sign of the charge on the ionized atom. इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, राइट? मैं ये कहूं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, या मैं ये कहूं कि इसने एक प्रोटॉन को गेन कर लिया है, एक ही बात है, राइट? सो मैं इन जनरल कह सकती हूँ इसके पास एक इजाफी प्रोटॉन है, राइट? एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? वही जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का चार्ज बराबर है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर है. तो इसके पास एक प्रोटॉन इजाफी, अगर मैं नेट देखूं तो इसका मतलब इसके पास 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम का चार्ज है, बट क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन इजाफी है ना, तो आई मस्ट राइट प्लस हियर, राइट? और एटलीस्ट आई शुड नॉट राइट ये वाला माइनस यहाँ पर, ठीक है? एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस कूलम हियर, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने यूनिट मेंशन नहीं किया. For those of you who have written +1, अगर आप +1 E लिखते तो चलें, I would have considered it. E is the charge of electron और आप लिख देते +1 E, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज but positive, right? But you just wrote +1, that is nothing. That's of course a relative charge, लेकिन it is not acceptable here. Then state which pair from P, Q, R, S, and T are isotopes of the same element.
अभी हम पीछे आइसोटोप की डेफिनेशन भी पढ़ के आए. आइसोटोप्स आर दी atoms of nuclei of same element which have same number of protons, right? So just see यहाँ पर कौन से हैं जिनका दो का number of protons same है. It's obvious. 19, 19. इसका मतलब है Q and R, they are isotopes of same elements. They have same proton number, but they have different neutron and therefore different nucleon number या different mass number. So the answer to this question should be Q and S. Then one of the atoms is a radioactive isotope that decays to produce one of the other atom. कौन सा एटम डिके हो रहा है और कौन सा एटम है जो इस डिके का प्रोडक्ट है और पेरेंट से डॉटर तक जाने में कौन सी रेडिएशन है जो एमिट आउट हुई थी, हमें ये देखनी है. व्हाट यू हैव टू डू हियर इज आप एक एक अलग एलिमेंट को कंसिडर करें एंड आप देखें अगर इससे अल्फा पार्टिकल इमिट आउट हो जिसकी वजह से इसके प्रोटॉन में दो की कमी और इसके न्यूट्रॉन में भी दो की कमी आनी चाहिए. क्या 17 से यहाँ पर 19 पर पहुंचने में इसका मतलब है दो प्रोटॉन ज्यादा हो गए. यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये अगर अल्फा इमिट कर रहा है तो ठीक है, यहाँ तक तो इट मेक सेंस, दो प्रोटॉन कम हो गए. लेकिन अगर ये अल्फा इमिट कर रहा है तो फिर दो न्यूट्रॉन भी कम होने चाहिए. दो न्यूट्रॉन कम नहीं हुए, इसका मतलब है इन दोनों में तो आपस में कोई कन्वर्जन नहीं हो रही, कोई एक इमिट करके दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ना अल्फा ना बीटा ना गामा ना न्यूट्रॉन, राइट. इसी तरह आपको हर दो कॉम्बिनेशंस के लिए इसी सेम स्टेप को फॉलो करना है. आपने देखना है कि इनके प्रोटॉन नंबर में कितना फर्क पड़ा, न्यूट्रॉन नंबर में कितना फर्क पड़ा, राइट. पहले उसके लिए जाहिर है आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोई एलिमेंट अल्फा इमिट करता है तो प्रोटॉन नंबर 2 से कम हो जाना चाहिए, न्यूट्रॉन नंबर भी 2 से कम हो जाना चाहिए, राइट. अगर बीटा इमिट करता है तो प्रोटॉन नंबर 1 ऐड हो जाना चाहिए, न्यूट्रॉन नंबर 1 कम हो जाना चाहिए, राइट. बिकॉज अगेन हमने उसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन ये पढ़ी थी कि वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है वो बेसिकली एक न्यूट्रॉन के ब्रेक होने से आ रहा है. इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया बट अंदर प्रोटॉन बढ़ गया इन सो ऑन, राइट. आप यहाँ से उसको बैलेंस करेंगे एंड अगर कोई गामा रेडिएशन एमिट करता है तो उसमें तो खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है. बट देन यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ये न्यूक्लियन के बारे में होता था, इन्होंने हमसे न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है. तो इस केस में हमें पता होना चाहिए जब अल्फा इमिट होता है तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पे फर्क आता है. जब बीटा इमिट आउट होता है तो जो रिजल्टेंट आपके पास एलिमेंट आएगा या जो न्यूक्लियाई आएगा उसका प्रोटॉन एक बढ़ जाएगा और उसका न्यूट्रॉन एक कम हो जाएगा. क्लियर? सी दिस राइट हियर 18 था, प्रोटॉन एक बढ़ गया एंड न्यूट्रॉन एक कम हो गया. सो यहीं से मुझे पता चला कि आर डीके हुआ एस में और इमिशन कौन सी थी, बीटा पार्टिकल इमिट आउट हुआ था. सी you'll write कौन सा एटम डिके हुआ, आर. किस में डिके हुआ, एस. रिजल्ट में इमिट क्या हुआ था, इट वाज बीटा पार्टिकल. डू नॉट राइट बीटा रेडिएशन. Then half life for the radioactive decay is 33 years. That is, this is the time जिसमें half of the nuclei in the radioactive sample will decay, right? या half activity जब decay हो जाएगी. A radioactive sample contains a large number of atoms that decay in this way. Determine the fraction of this number of atoms that will decay in 99 years. 33 ईयर इज दी हाफ लाइफ, आपसे 99 ईयर्स के बारे में पूछा है, यानी आपसे 3 हाफ लाइफ्स गुजरने के बाद के बारे में पूछ रहा है, राइट. एंड हमने पढ़ा था अगर स्टार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं n, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद 2 की पावर 1 रह जाते हैं, दो हाफ लाइफ्स गुजरने के बाद 2 की पावर 2 बच जाएंगे, तीन हाफ लाइफ्स गुजरने के बाद 2 की पावर 3 रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे. इन्होंने हमसे फ्रैक्शन पूछा है, यानी अगर स्टार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी थे, लेट्स जस्ट टेक देम फ्रैक्शन के टर्म्स में 1, तो मैं लिखूंगी कि 3 हाफ लाइफ्स गुजर जाने के बाद 1/8 इज एक्चुअली दी फ्रैक्शन जो अनडिकेड न्यूक्लाई हमारे पास बच गए. बट दे डिड नॉट आस्क कि रिमेनिंग कितने, दे आस्क्ड डीके कितने हो गए. सो इफ एथ पोर्शन ऑफ 1 इज रिमेनिंग तो यकीनन डीके कितने हुए होंगे, इट वुड बी 7/8. We have already seen these questions in last lecture. Let's see this last question here.
A teacher carries out an experiment on radioactivity using the apparatus shown in this figure. In this figure, we have a radioactive source and then we have a detector. Detector is connected with a counter, right? Count rate is the measurement of count during 1 minute, because हम कहते हैं count rate is disintegrations per unit time. Now this could be in 1 second, 1 minute, 1 hour. So they've mentioned it here. It is कितनी disintegrations हुई, कितने radioactive nuclide decay हो गए 1 minute में. Now they are asking you to state, just write it, right? The name of one type of radiation detector. We've started Gigamuller counter या Gigamuller tube so far. We have started spark counter. We have started cloud chamber. जो लिखना चाहें इधर लिखना है. Again, state. Pay close attention to the jargon. Command word पे focus करें. सिर्फ write the name. Do not explain it here, right? State one safety feature the teacher must take when using a radioactive source. Radioactive source को use करते हुए हमने 2-3 precautionary measures और safety measures हमने पढ़े थे, जिसमें जो सबसे कॉमन और सबसे काम का था वो ये था कि you need to make sure कि exposure का time कम से कम हो. You need to make sure that the distance between the source कम से कम होना चाहिए, राइट? मैक्सिमम जितने डिस्टेंस पर रहते हुए आप प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को आप करें. एंड देन अगर स्पिल हो जाने का खतरा है तो फिर यू नीड टू मेक श्योर कि लेड लाइनिंग है वहां पर, आपने सेफ्टी गॉगल्स पहने एंड सो ऑन. और अगर आपने जाहिर है खुद उसको हैंडल करना है रेडियो एक्टिव मटीरियल को, देन यू नीड टू मेक श्योर कि फिर आप अपने हाथों से उसको जो है वो डील ना करें. यू नीड टू यूज शील्डेड टंग्स एंड सो ऑन. तो जस्ट मेक श्योर हियर आई सजेस्ट यू राइट डिस्टेंस वाला पॉइंट या फिर कम से कम एक्सपोजर टाइम वाला पॉइंट, राइट? देन teacher, do not write place the source in a container. How can we then use the source if we are to place it in a container, right? So just make sure, अगर हाँ वो आपसे radioactive source के storage के terms में कुछ पूछ रहे होते तो फिर वहां पे the best example was the best precautionary measure was आप उसको बंकर में रखें, लेड या कंक्रीट के बंकर में रखें जब तक आपको उसके एक्सपोजर की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन वाइल यूजिंग दी सोर्स आपसे पूछा है तो फिर बंकर और कंटेनर को अवॉइड करें. Teacher states that the emissions from the radioactive source are random in time. State what is meant by random in time. बड़ा एक फेमस सा सेंटेंस है रेडियो एक्टिविटी के लिए. आप जिस बुक में रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक पढ़ेंगे यू विल सी रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस. इट इज रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस एंड वी हैव सीन, हमने इसको डिस्क्राइब भी किया था. हमने कहा था आप इमिशन की डायरेक्शन को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते एंड आप स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं इसको, राइट? यानी आप कहते हैं कि कितनी देर बाद इमिशन होगा, या टू बी मोर प्रिसाइज द टाइम बिटवीन इमिशंस, दैट इज आल्सो अनप्रिडिक्टेबल, राइट? एंड यहाँ पे देव सेड एक्सप्लेन करें कि ये रैंडम इन टाइम है. सो यू नीड टू मेंशन दैट द टाइम बिटवीन द इमिशंस इज इनकंसिस्टेंट. इट इज नॉट कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन वेरिंग, राइट? सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर डायरेक्शन वाले पॉइंट को ना मेंशन कर दें, इवन दो हम रैंडमनेस को हमेशा डायरेक्शन से एसोसिएट करते थे, राइट? तो जस्ट मेक श्योर आप यहाँ पे डायरेक्शन को ना मेंशन करें. नाउ दैट देव मेड इट क्लियर कि आपने प्रूव करना है कि इट इज रैंडम इन टाइम, राइट? आपने एक्सप्लेन तो कर दिया कि रैंडम इन टाइम का मतलब क्या है. नेक्स्ट ही पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि इसी अपैरेटस को यूज करते हुए बताएं स्टूडेंट कैसे प्रूव कर सकता है, टीचर कैसे प्रूव कर सकता है कि ये जो इमिशंस हैं वो वाकई रैंडम इन टाइम है, राइट? सो आप 2 लाइनों में उनको एक छोटी सी सिचुएशन, एक सेटअप छोटा सा बना के दें. आप उनसे कहें दी दे आर गोइंग टू रिकॉर्ड count rate for a fixed interval of time, right? They'll repeat these steps for like maybe 2 or 3 times and the result would not match, right? यानी अगर पहले उन्होंने 2 मिनट के लिए नोट डाउन किया कितनी डिसइंटीग्रेशन थी, दे केम अप विद एन आंसर. एंड देन फिर अगले 2 मिनट के लिए उन्होंने वापस डिसइंटीग्रेशन रिकॉर्ड की काउंटर से ही अगेन एक आंसर आया, बट दिस आंसर इज नॉट मैचिंग विद द वेरी फर्स्ट आंसर, राइट? इसका मतलब है कि वाकई द emissions are random in time. Equal interval of time में number of disintegrations या count rate being recorded is different. Then state what is meant by background radiation. See, this is the basic question one can ask you from this topic. And to my surprise, I did not come across a response that was best fit, right? Like, yes, students are writing that the background radiations are the radiations
but then they are writing that they are the ones which do not have a source. No, background radiation की अपनी source हैं और हम पढ़ते हैं cosmic radiations है, रेडॉन की वजह से आती है, ब्रिक्स की वजह से आती है, अर्थ के कोर से आती है, अब इन सो ऑन, राइट? यू कैन नॉट बी सेइंग कि बैकग्राउंड रेडिएशन की अपनी कोई सोर्स नहीं होती। हाँ, आप मेरे ख्याल में तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड रेडिएशंस आर द रेडिएशंस डिटेक्टेड या द काउंट रेट डिटेक्टेड in the absence of a radioactive source, किसी radioactive source, active radioactive जो source है उसकी presence के बगैर, यानी उसकी absence में भी अगर आपको कोई count rate मिल रहा है, इसका मतलब है this is the background radiation। और you can सबसे आसानी से you can write it is the naturally occurring radiations, right? Teacher measures the count rate due to source. Describe how the count rate is corrected for the background radiation. We have seen in a graph or two as well कि जब आप किसी भी रेडियोएक्टिव सोर्स की वजह से रेडिएशन नोट डाउन करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड का कुछ ना कुछ पार्ट आ रहा होता है, राइट? अब आपको बैकग्राउंड करेक्शन करनी है तो आप क्या करते हैं? फर्स्ट यू रिकॉर्ड द बैकग्राउंड रेट। 2 नंबर के लिए पूछा है तो इस पे भी जरा एक लाइन लिख, नॉट जस्ट राइट के बैकग्राउंड रेट आप रिकॉर्ड करेंगे, जस्ट मेक श्योर दैट यू राइट कि first the teacher will go away, far away from the source, and then will record the radiation count rate. This count rate will be termed as the background rate. Now they are going to record the count rate in the presence of the source, and then they'll subtract these count rates to correct for the background radiation. The resultant count rate will be the count rate solely because of the radioactive source, right? Because you have now made background corrections in that count rate. Then corrected count rate is recorded for various distances d between the source and the detector. Figure shows a graph of the results obtained. There's right here is the graph. We have count rate per minute on y-axis, and then on x-axis we have the distance in centimeter between the source and the detector. Determine the maximum distance that the radiation travels in air. Maximum distance or the range is the distance the radioactive source or any ionizing source can travel without completely being absorbed, right? So count rate 0 तक drop होने तक कितना distance travel हो गया? 4, 5, 1 centimeter के distance में there are 10 boxes. So एक box किसके बराबर होगा? 0.1 centimeter. So if it is 4, you'll write 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, and then finally 4.5 centimeters. You'll write 4.5 centimeters here. Then state the name of the radiation emitted by the radioactive source and give a reason for your answer. What do you think? कौन सी radioactive source है जो 4.5 centimeters of air में ही completely absorb हो गई? See, we have alpha, we have beta, and then we have gamma, जिसकी हम ionization को, penetration को और जिनके charges को, compositions को हम compare करते थे आप ही के एक learning objective में, right? उसमें we have seen कि alpha is the least penetrating and the most ionizing radiation, right? It interacts the most with the medium. वहां पर हम कहते थे कि alpha को रोकने के लिए air is sufficient. few centimeters in air and काम खत्म है अल्फा का, right? एयर के मुकाबले में बीटा कैन ट्रेवल tens of centimeters in air, right? Gamma on the other hand can travel hundreds of centimeters in air, right? तो उसको फर्क नहीं पड़ता कुछ खास एयर में ट्रैवल करने से। अल्फा कुछ सेंटीमीटर्स के बाद एब्जॉर्ब हो जाती है, so it is quite obvious from here that the radiation the graph is given for is none other than alpha particle. So we'll write the radiation is alpha particle. Do not write alpha rays here, right? Then the reason is आप mention कर दें कि the range of alpha particle in air is in few is several centimeters, right? बीटा को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमने पढ़ा था we need few millimeters thickness of aluminium and gamma के लिए we need few centimeters of lead, right? ऐसे कंक्रीट से भी रुकता है बट कंक्रीट के लिए फिर कंपेरेटिवली ज्यादा थिकनेस हमें चाहिए होती है, लेड बड़ी कम थिकनेस में रोक लेता है gamma radiations को. So I hope it makes sense. As the radiation from the source travels in the air, it causes ionization. Describe what is meant by the ionization of air. The responses I received
आप आयनाइजेशन ऑफ रेडिएशन की बात कर रहे हैं, रेडिएशन इटसेल्फ एयर को आयनाइज कर रही है जहां से वो गुजर रही है, राइट। आप ये नहीं कह सकते कि वो अल्फा पार्टिकल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या वो अल्फा पार्टिकल अपने प्रोटॉन को लूज कर रहा है, एंड सो ऑन। आयनाइजेशन ऑफ एयर की बात हो रही है, इसका मतलब है एयर मॉलिक्यूल्स मस्ट बी लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आप यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे। Okay, just wait here. So it says half-life of another radioactive source is 40 minutes. Initially, the corrected count rate from this rate is, that is background count rate आप already minus कर चुके हैं, right? Corrected count rate is 300 counts per minute. On figure, plot suitable points and draw a graph of the corrected count rate as it changes with time. Here we go. Okay. So initially the count rate is 300. So at time 0, you should mark right here count rate on y-axis, that is per minute. You'll write 300. फिर इसकी half life है 40 minutes. इसका मतलब है next आपको पता है कि 40 minutes में count rate, that is the activity, it will reduce half of the value जो अभी है, यानी 300 से कम होकर 150 पर आ जानी चाहिए. See, this is the point right here that we need. Just make sure कि आप ये जो point बनाए ये half box से ज्यादा जो है वो thick ना हो, ठीक है। आपके जो learning objective में description है graph की, वहां पर ये बात लिखी हुई है। So just make sure I did this, you should not be doing this, ठीक। Then एक और half life के बाद, that is another 40 minutes के बाद, या we can say total of 80 minutes पर, the count rate should further रिड्यूस, राइट। यानी अब अगर ये 150 है तो मजीद एक हाफ लाइफ के बाद इसे 150 का भी आधा हो जाना चाहिए, दैट इज नथिंग बट 75, राइट। सो वी हैव 0 से 50 इन 10 बॉक्सेस। तो यकीनन एक बॉक्स कितने का है, 5 काउंट्स पर मिनट का। if it is 50, 55, 60, 65, 70, this right here is 75. So you'll extend from this 75 all the way till you reach the second half life, that is 80 minutes. Then एक और हाफ लाइफ के बाद, दैट इज 120 मिनट्स पर, यानी 80 के बाद मजीद 40 मिनट, बिकॉज 40 मिनट्स वाज द हाफ लाइफ। एज द सैंपल disintegrates, half life does not change, right? It is just the count rate that keeps on changing. And 80 पे it was 75, तो एक और हाफ लाइफ के बाद 75 का हाफ हो जाना चाहिए, दैट इज नथिंग बट 37.5. सो अगेन इट्स 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. दिस राइट हियर इज 40, तो 35, 37.5 यहाँ कहीं इन बिटवीन होना चाहिए. See, this is the point right here. Just make sure to encircle the point. अगर आपने पेंसिल से बहुत फाइन पॉइंट्स लगाए हैं, and then you need to just join them. मेरे स्ट्रोक्स को जरा जज ना करें, बिकॉज ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा जूम आउट हुआ है. एंड here we go. See, this is exponentially decaying graph radioactive sample ka, and that is what matches exactly with the theory, right? So that's it. This is all from my side in this lecture from nuclear physics. I hope कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे. आई होप इट वुड हेल्प यू इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस. आई होप you have some basic points on your fingertips now. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.